Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 22nd of October 2021, Friday. Inspiration of the day is do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let us start with article number 1 given on page number 4. Gati Shakti okayed top government panel to monitor progress. Basically, cabinet ने कल कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं कैबिनेट कमेटी ने, तो उसी को आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने पेज नंबर 4 पर कवर किया है। तो बेसिकली दो न्यूज़ को कवर किया गया है या दो डिसीजंस को कवर किया गया है, तो हम इन्हीं दो डिसीजन के बारे में आज के न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। सो गति शक्ति, जैसा कि हम पहले कई बार न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर multimodal connectivity. So it is a master plan or a scheme that will actually improve or facilitate the multimodal connectivity in India, which basically institutional framework as well as its implementation. So in order to boost the infrastructure, in order to boost the employment, in order to boost the economic activities or recovery, Government of India has launched the Gati Shakti, and now Cabinet Committee on Economic Affairs, that is CCEA, has approved this particular national master plan. So there will be three-tier system for monitoring this national master plan. One will be empowered group of secretaries, that is EGOS, and second will be network planning group, that is NPG, and third will be the technical support unit, that is TSU. So this will be the three-tier system, and the approval came a week after PM has launched this particular master plan in the national capital. तो तीन टायर, तीन चैनल का हम बोल सकते हैं, तीन लैडर का या तीन लेवल का ये पर्टिकुलर सिस्टम होगा जो कि इस पूरे गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मॉनिटर करेगा। जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज है, दैट विल बी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी एंड विल कंप्राइज द सेक्रेटरीज ऑफ 18 मिनिस्ट्रीज। और कौन कौन से मिनिस्ट्रीज? डेफिनेटली जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो रेल, रोड, किसी भी तरह की मिनिस्ट्री हो जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उसके रिप्रेजेंटेटिव या उसके सेक्रेटरीज इस पर्टिकुलर EGOS कमेटी का, EGOS ग्रुप का पार्ट होंगे, एंड द हेड ऑफ लॉजिस्टिक डिवीजन विल बी द कन्वेनर फॉर दिस पर्टिकुलर tier. And EGOS has been mandated to review, monitor the implementation of this particular master plan and to ensure that logistic efficiencies are maintained. Apart from it, this particular group will also be empowered to prescribe the different frameworks and norms for undertaking any subsequent amendment to this national master plan. So this group will be the responsible group for monitoring, implementation, and any sort of amendments. So this group of secretaries will ensure that all the procedure and all the framework are synchronized or are in synergy with the various activities. There will be no misalignment, and the various initiatives of infrastructure development are part of the common integrated digital platform. So this is basically overall master plan where one digital platform will be there. Apart from it, that particular plan will also integrate the number of infrastructure projects so that fund or liquidity of finance can be smoothly flow between or among these infrastructure projects. And the panel will also ensure the efficient transportation of bulk goods on the requirement of various ministries such as steel, coal, fertilizer and other ministry. तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि जो कनेक्टिविटी वाली मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि रेल हो गया, बस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इनके अलावा जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं लाइक कोल, स्टील, मेटल, फर्टिलाइज़र, ये सब भी इस पर्टिकुलर गति शक्ति मास्टर प्लान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो गति शक्ति अ डिजिटल पोर्टल इज अ गवर्नेंस टूल, और इसमें जो डिजिटल पोर्टल होगा दैट विल बी वर्किंग एज अ गवर्नेंस टूल. तो टेक्नोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करने की कोशिश करी गई है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द एफिशिएंसी इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. होता क्या है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम आती रहती हैं और कई बार कुछ सारी स्कीम जो है वो फंड की कमी की वजह से या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स की वजह से बॉटलनेक में पड़ी रहती हैं.
तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोशिश करी है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज हैं जो कि रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, उन सबको कंबाइंड करके एक इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान बनाया जाए जिसमें टेक्नोलॉजी का भी इन्फ्यूजन अडॉप्शन हो। तो एक डिजिटल पोर्टल भी होगा इस पर्टिकुलर गति शक्ति के तहत, जिसके तहत डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं, दैट विल बी कनेक्टेड विथ ईच अदर। मिनिस्ट्रीज जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकेंगी रिलेटेड टू एनी प्रोजेक्ट। अगर कोई हर्डल आ रहा है, कोई बॉटल नेक आ रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, दैट कैन बी रिजॉल्व ईजिली थ्रू प्रॉपर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन with proper integration of the ministries. So however, it is currently in beta mode and it is expected to be launched soon. So beta mode means development phase में है, बहुत जल्दी ये particular जो digital platform है गति शक्ति का, ये launch हो जाएगा और इसके बाद it is more likely that within 1 or 2 months this particular project or master plan will be started. Apart from this decision, government has also taken one of the very important, or cabinet committee has also taken one of the very important decision, that is hike in the DA. DA stands for dearness allowance. डियरनेस अलाउंस क्या होता है? बेसिकली इसको हिंदी में हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो इट इज़ अ कैलकुलेशन ऑन इन्फ्लेशन एंड अलाउंसेस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द पेंशनर्स इन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नंबर ऑफ अदर कंट्री वेयर दिस DA इज एप्लीकेबल। एंड दिस DA इज बेसिकली गिवन as a percentage of salary, as a percentage of base salary, in order to mitigate, in order to remove, in order to reduce the impact of inflation on individual citizen. तो अभी इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रही है, तो ये बहुत टाइम से, और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पहले भी DA इंक्रीज़ किया था, और इसके बाद जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट बेसिकली ये चाहती है कि पब्लिक के हाथ में मनी आए। डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा परसेंटेज ऑफ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ बेस सैलरी, जिसकी वजह से पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा मनी होगा, तो देयर विल बी मोर डिस्पोजेबल इनकम, एंड मोर डिस्पोजेबल इनकम में लीड्स टू मोर डिमांड, एंड डिमांड लीड्स टू increase in economic activity, and that may leads to economic growth. So Union Cabinet on Thursday hiked the dearness allowance and dearness relief by 3%, and after this total dearness allowance for government employee will become 31%, and this will benefit approximately 47.14 lakh central government employees and 68.62 lakh पेंशनर्स। पेंशनर के लिए भी डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, उनकी पेंशन में कैलकुलेट होता है DA। तो इससे इतना ज़्यादा लोग बेनिफिट होंगे, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, एंड दैट विल इवेंचुअली कन्वर्टेड itself into demand. And the decision was announced by Information and Broadcasting Minister Mr. Anurag Singh Thakur. तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं पर्पस यही है कि किसी तरह से डिमांड को बूस्ट किया जाए। इसके अलावा डेफिनेटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको भी बेनिफिट होगा। अभी रिसेंटली जुलाई में, अगर आपको याद हो, कंटिन्यूसली अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो डियरनेस अलाउंस को या DA को बढ़ा करके 28% किया गया था। जुलाई 2019 से पेंडिंग था डिसीजन DA को इंक्रीज़ करने का, सो फाइनली इस जुलाई में डिसीजन लिया गया था, और अब इसके बाद रिसेंटली गवर्नमेंट ने फिर से एडिशनल 3% DA बढ़ा दिया है। सो द कैबिनेट हैज़ गिवन द अप्रूवल टू रिलीज ऑन एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू द all central government employees and to the pensioner that will be with effect from July 2021. तो ये जो पहले बढ़ाया गया था डियरनेस अलाउंस DA, वो कब था? वो पिछले कई सालों का पेंडिंग था, और कुछ नॉर्म्स होते हैं कि हर 2 साल 3 साल में गवर्नमेंट को एज पर द इन्फ्लेशन DA को रिवाइज करना होता है। तो पिछले कुछ टाइम से कोविड की वजह से DA का रिवीजन नहीं हो पाया था, तो उसका पेंडिंग रिवीजन हुआ है, और जो 3% ये इंक्रीज हुआ दैट इज फॉर दिस ईयर इन्फ्लेशन। So hope so that this particular increase in DA will increase the demand and definitely will boost up the economy. Now let us look into the article number 2 that is given on page number 4. Should plant strategic fuel reserve, says पावर सेक्रेटरी। अगर स्ट्रैटेजिक फ्यूल रिजर्व या रिजर्वॉयर्स की बात करें, तो इंडिया में ऑयल को रिजर्व करने के लिए, ऑयल को स्टोर करने के लिए हमारे पास 4 स्ट्रैटेजिक रिजर्वॉयर्स हैं।
अब इस न्यूज़ में क्या बेसिकली कवर किया गया, इस न्यूज़ में जो हमारे यूनियन सेक्रेटरी ऑफ पावर मिस्टर आलोक कुमार हैं, उन्होंने ये कहा है that India should consider having the strategic fuel reservoirs or reserves for coal, gas and oil. तो oil के लिए तो हमारे पास है, but definitely he is talking about to increase in number of these reservoirs. Apart from oil, he is also saying that government should plan or should have the reservoirs or the reserves for coal as well as the gas in order to deal with any uncertain situation, in order to deal with any demand supply mismatch जो कि अभी हो रहा है। जिस तरह से ऑयल के और रेट बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, जिस तरह से कोल की शॉर्टेज हो रही है, उसको देखते हुए as per Union Secretary of Power, it is now desirable, it is apt time for the government to think about the strategic फ्यूल रिजर्वॉयर्स और रिजर्व, जिससे कि ऐसी कभी भी शॉर्टेज की सिचुएशन आए कोल, गैस या ऑयल के केस में, तो इंडिया के पास सफिशिएंट रिजर्वॉयर्स, सफिशिएंट रिजर्व्स होने चाहिए, जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड शॉर्टफॉल, जैसा कि अभी हो रहा है। क्यों ऐसा कहा इन्होंने? बेसिकली अगर आप देखें तो कोल, गैस और ऑयल, ये तीनों ही कमोडिटी इन दीज केसेस इंडिया हैज़ डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज। हमारी जो डिपेंडेंसी है वो अदर कंट्रीज पर है, हम बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट नहीं है इन केस ऑफ कोल, गैस, ऑयल एंड अदर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। और इसी को रीट्रेट किया था कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा इन केस ऑफ एनर्जी नीड। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बट स्टिल अभी भी इंडिया का जो एक सिग्निफिकेंट पार्ट या जो एनर्जी की सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है वो कोल से पूरी होती है, और कोल हम इंपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल अवेलेबल नहीं है। और क्रूड ऑयल के केस में तो हम जानते हैं कि क्रूड ऑयल इंडिया का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होने वाली कमोडिटी है, और सबसे ज़्यादा जो हमारा इंपोर्ट का बिल है वो क्रूड ऑयल पर ही जाता है। एंड दैट इज़ वाई अमिड द प्रेजेंट सिचुएशन यूनियन सेक्रेटरी ऑफ पावर इज सेइंग दैट इट इज़ अ टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू कंसीडर द स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्वॉयर्स, एंड दैट वुड बी स्मॉल कॉस्ट विज़ कॉस्ट ऑफ डिसरप्शन एंड अनसर्टनिटी विच कंट्रीज आर एक्चुअली फेसिंग। तो कोल की शॉर्टेज को देखते हुए जिस तरह से हमारे यहाँ पावर जनरेशन कैपेसिटी एक दिन में इतनी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, और जो अभी इन्वेंट्री है कोल की एज पर द नेशनल पावर पोर्टल वो केवल और केवल 3 दिन की बची है फॉर 22 गीगावाट्स एंड 1 दिन की बची है फॉर 29 गीगावाट्स ऑफ पावर जनरेशन। तो इस रिस्क पे इस समय इंडियन इकोनॉमी काम कर रही है, और अगर ये सिचुएशन बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं करी गई तो इट मे फर्दर हैम्पर द इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ इंडिया। हालांकि अगर कोल की शॉर्टेज की बात करी जाए तो इनिशियली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर और कोल ने और इवन गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर शॉर्टेज को या इस पर्टिकुलर शॉर्टेज की सिचुएशन को डिनाई किया था। लेटर ऑन सेंटर ने अलाउ कर दिया था थर्मल पावर जनरेशन प्लांट्स को कि दे कैन नाउ इम्पोर्ट द कोल फॉर एटलीस्ट 10% ब्लेंडिंग, citing the shortage of domestic coal supply। तो CII साउथ एशिया पावर समिट में हमारे जो पावर सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इट गवर्नमेंट में कंसीडर फॉर प्लानिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्वॉयर्स, क्योंकि गैस, कोल और ऑयल के केस में अगर तीनों ही केसेस में इंडिया की डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ पर ज़्यादा, अगर आप देखें नंबर्स में तो 17,000 मेगावाट कैपेसिटी इज़ बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेड कोल, 24,000 मेगावाट कैपेसिटी इज़ बेस्ड ऑन द गैस पावर प्लांट्स। तो अगर कहीं भी हमारे गैस का इंपोर्ट या हमारे कोल का इंपोर्ट अफेक्ट होता है तो इतना एनर्जी जनरेशन हमारा अफेक्ट होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं 24,000 मेगावाट और 17,000 मेगावाट का जो एनर्जी जनरेशन होता है वो अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ कोल एंड गैस, इम्पोर्टेड कोल एंड इम्पोर्टेड गैस शॉर्टेज। So yes, it is a time for India to think about its energy security and energy sufficiency. So going green is one of the option and one of the measure that government is taking. Apart from it, India can also tap the solar energy जो कि इंडिया में abundant है। इंडिया की जो सिचुएशन है, जियोग्राफिकल सिचुएशन, उसको देखते हुए इंडिया अपनी सोलर एनर्जी की जो
रिसोर्स एलोकेशन है उसको टैप कर सकता है। और इसी से रिलेटेड इंडिया ने एक एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी भी लॉन्च करी थी। इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दैट मैटर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इंडिया ने सोलर एनर्जी से रिलेटेड कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर्म किया था एट अ इंटरनेशनल लेवल इन ऑर्डर टू integrate all those countries, in order to cooperate with all those countries which are rich in solar energy resource allocation. इसके अलावा रिफॉर्म्स आर ऑल्सो नेसेसरी इन केस ऑफ पावर ट्रांसमिशन, इन केस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्वर. सो लेट अस सी हाउ गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड ऑन दीज पर्टिकुलर कॉल्स. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8. PSBs may get capital support in quarter 4 to meet the regulatory requirements. So the government is likely to pump capital in public sector bank during the last quarter of current financial year. Why? Definitely in order to meet the regulatory requirement. What is the meaning of regulatory requirement? For operating as a bank, any organization must need to fulfill certain regulatory requirement. Regulatory requirement basically financial regulatory requirement कि उनके पास टायर 1 का इतना कैपिटल होना चाहिए, टायर 2 का इतना कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इतना होना चाहिए, NPA से कम होना चाहिए. नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर देयर. सो पैंडेमिक की वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, NPAs बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जो लोन्स थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हुए हैं. और हमने कई बार डिस्कस भी किया है और ऐसे प्रोजेक्शंस भी हैं कि अभी ये जब तक कि कोविड की वेव का इम्पैक्ट ख़त्म होगा तब हो सकता है NPA जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़े और ज़्यादा. तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर लास्ट क्वार्टर में गवर्नमेंट जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिनको रिक्वायरमेंट है, कैसे रिक्वायरमेंट का एनालिसिस होगा वो सब डिटेल अभी फिलहाल डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन येस गवर्नमेंट इज गोइंग टू पम्प द कैपिटल अपार्ट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स. जो रिमेनिंग PSBs बचेंगे गवर्नमेंट उनमें कैपिटलाइजेशन करेगी, उनको फंड इंश्योर कराएगी जिससे कि वो अपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. द गवर्नमेंट इन बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 हैज़ मेड एन एलोकेशन ऑफ 20,000 करोड़ फॉर द कैपिटल इन्फ्यूजन इन ऑल स्टेट ओन्ड बैंक्स. और इसके लिए जितने भी बैंक्स हैं उनकी कैपिटल पोजीशन को रिव्यू किया जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर में. और डेफिनेटली एज आई सेड कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्फ्यूजन किया जाएगा जिससे कि बैंक जो है अपनी बेसल या जो अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सके. इन द करंट फिजिकल सो फॉर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज़ पोस्टेड अ प्रॉफिट विच इज़ बीइंग प्लॉग्ड बैक टू द bolster the balance sheet of the banks as per the sources. प्रॉफिट तो 12 बैंक ने रजिस्टर किया है. इसके अलावा अगर NPA को देखा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग भी एलोकेशन किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ शार्प राइज इन NPA एंड apart from this sharp rise, it is also expected that in future course of time the NPA will also increase. बहुत सारे national और international जो agencies हैं उनकी forecast भी यही है. And if the numbers are anything to go by, sources said the financial health of public sector banks are showing gradual sign of improvement all across the spectrum. एंड इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस कि जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ी है. हालांकि इस बार का जो क्रेडिट ग्रोथ रेट का नंबर्स है, डेटा है, दैट इज़ इंडिकेटिंग समथिंग एल. पर्सनल लोन्स जो हैं वो कॉरपोरेट या इंडस्ट्रियल लोन्स को क्रॉस कर चुके हैं. लेकिन यस पिछले 2 साल के कंपैरिजन में या पैंडमिक के कंपैरिजन में अब इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो चुका है. क्रेडिट ग्रोथ रेट पॉजिटिव हो चुकी है. बैंक्स क्रेडिट लेंड कर रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं जिससे कि उनकी इनकम जनरेट हो रही है. और रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे बैंक्स को PCA की कैटेगरी से रिमूव किया था. सबसे पहले कौन सा बैंक रिमूव किया गया था PCA की कैटेगरी से? IDBI. वाई? फॉर प्राइवेटाइजेशन. और IDBI के बाद इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, इन सब को भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की कैटेगरी या फ्रेमवर्क से रिमूव कर दिया था. इट मीन्स इनका जो फाइनेंशियल्स थे, जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस थी वो इम्प्रूव हो चुकी थी. तो गवर्नमेंट जो RBI ने इनको बेसिकली वॉच लिस्ट, अगर हम इसको बहुत नॉर्मल भाषा में बोले तो वॉच लिस्ट में डाल रखा था इन बैंक्स को कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, तो यू आर अंडर वॉच लिस्ट. हम आपको देखेंगे और आपको जो सजेशन दिए गए हैं कि आपको जो रिकमेंडेशन करी गई है कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल सिचुएशन यू शुड
अडॉप्ट और यू शुड फॉलो दीज रिकमेंडेशन। तो आप उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करिए। मीनवाइल वी विल कीप यू अंडर वॉच लिस्ट एंड वंस योर फाइनेंशियल सिचुएशन इज इम्प्रूव वी विल रिमूव यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट, दैट इज PCA कैटेगरी, एंड आफ्टर दैट यू विल बी अलाउड टू लेंड फ्रीली। अभी क्या होता है, जो बैंक्स PCA की कैटेगरी में होते हैं उनके लेंडिंग या उनके लोन डिसबर्समेंट की जो राइट्स होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस होता है बिकॉज ऑफ देयर पुअर फाइनेंशियल हेल्थ। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं उनको PCA की कैटेगरी से हटा दिया जाता है, एंड इसके बाद बैंक्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं अपने RBI के जो नॉर्मल कॉमन रेगुलेशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग लेंडिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो रिसेंटली यूको, IDBI, इंडियन ओवरसीज बैंक को PCA की कैटेगरी से हटाया गया था, following the improvement into the various parameters and the written commitment by the state-owned lenders that they will comply the minimum capital norms of minimum capital requirement। और अब केवल एक ही बैंक PCA की कैटेगरी में बचा है, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। PCA की कैटेगरी में केवल एक बैंक बचा है, दैट इज मोस्ट लाइकली कि RBI इसको भी PCA की कैटेगरी से हटा देगी। तो इस बार जो लास्ट क्वार्टर है उसमें गवर्नमेंट कैपिटल इन्फ्यूजन करेगी। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 20,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजमेंट हुआ था, जिसमें 4,800 करोड़, अगर आप देखें 4,800 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में किया था, 4,100 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन इंडियन ओवरसीज बैंक में किया था और 2,600 करोड़ का इन्फ्यूजन यूको बैंक में किया था। और डेफिनेटली इन्हीं इन्फ्यूजन के बाद से ये यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक जो हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी इंप्रूव हुई और उनको PCA की कैटेगरी से RBI ने रिमूव कर दिया। द गवर्नमेंट हैज़ इन्फ्यूज ओवर 3.15 trillion into public sector bank in the 11 years थ्रू 2018 और 19। तो इतना अमाउंट का कैपिटल इन्फ्यूजन अभी तक गवर्नमेंट कर चुकी है इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स थ्रू फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 19। और प्री पैंडेमिक गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ का जो फंड था, कैपिटल था, वो इन्फ्यूज़ किया था इन ऑर्डर टू बूस्ट द क्रेडिट फॉर स्ट्रॉन्ग इम्पटस टू द इकोनॉमी। क्योंकि आपको याद हो तो प्री पैंडेमिक की सिचुएशन में भी इंडियन इकोनॉमी जो थी वो रिसेशन की सिचुएशन में थी, 4 या 5% इकोनॉमिक ग्रोथ थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल गिरे हुए थे उस समय तक, और उसी के बाद पैंडेमिक आया, उसी ड्यूरेशन में पैंडेमिक आया इवन, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हुई। तो प्री पैंडेमिक टाइम में यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में भी गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया था। And for this financial year, government has also planned 20,000 crore capital infusion in the state-owned bank, but that will be done at the end of this financial year or fourth quarter of this financial year after analyzing the situation of every public sector or state-owned bank. Now let us look into the few other news clips. 1 billion zaps and continue. So finally, India has achieved or reached the milestone of 1 billion COVID vaccine in a little over 9 months. 9 महीनों में 1 बिलियन का वैक्सीनेशन इंडिया कर चुकी है, मतलब 100 करोड़ का वैक्सीनेशन सिंगल डोज से कर चुके हैं। और इंडिया हैज़ एडमिनिस्टर्ड द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ डोजेस इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू चाइना which is said to have given the 2.2 billion doses to its citizen as per their record. तो फिलहाल केवल चाइना से ही पीछे है इंडिया। डेफिनेटली पॉपुलेशन के टर्म में ये नंबर इसीलिए ज़्यादा क्योंकि पॉपुलेशन दोनों कंट्रीज़ की ज़्यादा है। तो इंडिया ने एक रिकॉर्ड हाई वैक्सीनेशन और इनॉकुलेशन नंबर अचीव किया है। जैसा कि बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज़ का कहना भी था कि इंडिया की इकोनॉमी को रिकवरी करने के लिए, रिकवर होने के लिए वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द की पैरामीटर। जितनी स्पीड से इंडिया वैक्सीनेशन करेगा, मास वैक्सीनेशन करेगा, उतनी ही स्पीड से इंडिया की इकोनॉमी रिकवर करेगी। वाई? बिकॉज इट विल इंक्रीज द पॉजिटिव sentiment among the investors, domestic as well as a foreign investor, as well as it will reduce the uncertainty of COVID-19 pandemic. और अगर मेजर स्टेट्स की बात करें तो MP में 51.8% पॉपुलेशन वैक्सीन ले चुकी है, बिहार में 51.2। ये दोनों लोएस्ट स्टेज हैं। अगर मैक्स ज़्यादा से सबसे ज़्यादा किन स्टेट में हुआ है तो महाराष्ट्र 76.3, वेस्ट बंगाल 69.6 एंड MP 79.4।
और अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करी जाए तो ब्राज़ील इज़ द कंट्री दैट हैज़ द हाईएस्ट नंबर और हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फुली वैक्सीनेटेड population, followed by US and India. So this is the good sign for the Indian economy, and definitely this mass inoculation or speed up mass inoculation will definitely pace up the Indian economic recovery. Now let us look into the next clip. Indices declined for third straight day. So India's benchmark indices declined for third consecutive day on Thursday, led to the loss in index heavyweight Reliance, Infosys, TCS. तो अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि जो इंडाइसेस हैं वो रिकॉर्ड हाई पहुंच रहे हैं, 18,000 का मार्क क्रॉस कर लिया था निफ्टी ने, 60,000 का मार्क क्रॉस कर लिया था सेंसेक्स ने, और उसके बाद से लगातार 3 दिनों से जो इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं दे आर शोइंग द डिक्लाइन ट्रेंड, और जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो अगर देखा जाए तो रिलायंस, इंफोसिस और TCS जैसे जो हैवी वेट कंपनीज हैं उनको हो रहा है एमिड द इन्वेस्टर कंसर्न ओवर द हाई वैल्यूएशन एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एज वेल एज ऑन द इकोनॉमिक रिकवरी। तो इन्फ्लेशन को लेकर के एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स है जिसकी वजह से ये फॉल दिख रहा है। अ रैली इन बैंकिंग शेयर्स हेल्प टू ऑफशोर सम लॉसेस। बैंकिंग सेक्टर के जो शेयर है उनमें कुछ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका थोड़ा सा लॉस जो है वो ऑफसेट हुआ या मिटिगेट हुआ, हम ये कह सकते हैं। सो आफ्टर ड्रॉपिंग एज मच एज 774 point, it means 774 points, Sensex ended the session 336 point, that is 336 point, 0.5% fall or 0.5% lower than the previous session, while the Nifty fell at 89 points to close at 18,178 points, that is 1.5% below than the previous session. So last 3 दिन से indices जो हैं they are showing the negative trend. Now let us look into the next clip. GAIL to procure India's largest hydrogen unit. So GAIL India is in the process of procuring 10 megawatts electrolyzers, the largest in India, जिसके लिए ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया जा चुका है। जो गेल के चेयरमैन है, कौन है गेल का चेयरमैन? मिस्टर मनोज जैन। उनका ये कहना है कि साइडलाइंस ऑफ इंडिया एनर्जी फोरम में कि फिलहाल के लिए गेल इज गोइंग टू एक्वायर द लार्जेस्ट इलेक्ट्रोलाइजर इन द कंट्री एज पर हिम। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोलाइजर और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और क्यों ये न्यूज़ में बनकर आया। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइजर इज़ एन इक्विपमेंट दैट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है। और जैसे कि जिस तरह से इंडिया और गवर्नमेंट का फोकस है हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, सो दिस पर्टिकुलर स्टेप विल बी द significant step in case of public sector undertaking. So the electrolyzer will be deployed in the next 12 to 14 months as per him. और विजयनगर मध्य प्रदेश में इसका डिप्लॉयमेंट होगा, बट द फाइनल लोकेशन हैज़ नॉट येट बीन डिसाइडेड एंड करेंटली गेल हैज़ 4 lakh tons per annum liquefied petroleum gas plant in this particular same location. और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इतने अमाउंट के 10 मेगावाट्स के इलेक्ट्रोलाइजर से अप्रॉक्सीमेटली 4.5 टन्स की ग्रीन हाइड्रोजन एक दिन में जनरेट होगी। एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रोलाइजर इज ऑल्सो 10 मेगावाट्स कैपेसिटी। हालांकि 20 मेगावाट्स कैपेसिटी का सोलर जो एरी है वो अभी भी अवेलेबल है, लेकिन येस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर 10 मेगावाट्स कैपेसिटी इज़ द हाईएस्ट एंड इंडिया इज़ गोइंग टू एक्वायर इट। ग्लोबल टेंडर हैज़ बिन फाइनलाइज फॉर इट। अब बहुत जल्दी इसका लोकेशन भी हो जाएगा और इंडिया में ये इलेक्ट्रोलाइजर इंस्टॉल हो जाएगा दैट विल जनरेट 4.5 टन ग्रीन हाइड्रोजन per day, and it will definitely help the India to achieve its sustainable or renewable or green energy targets. Now let us look into the next clip. NTPC invites bid to import 2MT coal. So finally अब जितनी भी जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो कोल को इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर से एटलीस्ट फॉर 10% ब्लेंडिंग। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है कौन? एनटीपीसी। एनटीपीसी ने इनवाइट किया है टेंडर IFB किस लिए? टू प्रोक्योर द 2 million टन्स इम्पोर्टेड
coal. So after hiatus of at least 2 years, now NTPC is going to acquire or going to import the coal amounting 2 million ton. और 2 प्लांट्स के लिए ये बिड इनवाइट करी गई है। और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में कोल के जो प्राइजेस हैं, क्या प्राइस चल रहे हैं इस समय कोल के ग्लोबल मार्केट में 12,000 रुपये पर टन, 12,000 के पर टन। सो इस अमाउंट को, इस प्राइस को देखते हुए कैलकुलेशन करी जा रही है दैट आफ्टर दिस अमाउंट ऑफ procurement or import, the cost of power generation will increase by 0.5 to 0.75 per units। 50 पैसे से 75 पैसे तक की कॉस्ट बढ़ जाएगी पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की। तो डेफिनेटली इसका बर्डन इवेंचुअल जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन्हीं को बेयर करना है। तो 2 मिलियन टन का इंपोर्ट करने जा रही है एनटीपीसी 12,000 पर टन के रेट से, जिसकी वजह से जो यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक की जो पावर जनरेशन कॉस्ट है वो 50 पैसे से 75 पैसे बढ़ेगी और इवेंचुअल कंज्यूमर पर शायद इसका 1 रुपये पर जा करके इसका इम्पैक्ट पड़े। So let us see how this particular import will actually execute. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। UVARC submit bid to buy IFIN's BAT loan. So UV Asset Reconstruction Company, Asset Reconstruction Company is an ARC that has submitted the bid. Bid submit करिए किस लिए? 62 non-performing accounts worth rupees 4,300 crore from ILNFS subsidiary, that is IFIN। तो इसकी ILNFS शेडो बैंक या इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी बोलते हैं हमने। इसमें क्राइसिस हुई थी, हमने कई बार डिस्कस भी किया है। क्या क्राइसिस हुई थी? बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मिसमैच, जिसकी वजह से ILNFS वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव और बहुत सारे जो उसकी सब्सिडीज़ हैं, जो यूनिट्स हैं, जो सिक हैं, दो लायबिलिटीज़ हैं, उनको फिलहाल के लिए शेड किया जा रहा है। एंड फॉर दैट नंबर ऑफ ARCs आर सबमिटिंग देयर बिड। सो UV Asset Reconstruction Company हैज सबमिटेड अ बिड फॉर 62 नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स जिनकी वैल्यू 4,300 करोड़ की है। तो IFINs को फिलहाल के लिए UV Asset Reconstruction Company ने खरीदने का प्रपोजल दिया है। एंड अकॉर्डिंग टू RBI रेगुलेशन, IFIN हैज इनिशिएटेड द स्विस चैलेंज मेथड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द हाईएस्ट बिडर ऑफ अर्लियर राउंड। और इससे पहले भी अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, इससे पहले भी ILNFS की एक सब्सिडरी जो थी उसका बिडिंग हुआ था और हमने उस न्यूज़ को कवर भी किया था। तो फिलहाल के लिए UVARC ने बिड किया है और स्विस चैलेंज के अकॉर्डिंग जो है वो विनर का नाम जल्दी ही अनाउंस किया जाएगा। द बिड फॉर IFIN's BAT लोन sale had closed on Tuesday. The potential transaction would be conducted on a full upfront cash consideration basis। तो पूरा कैश के बेसिस पर ये डील होगी। सो अभी फिलहाल के लिए UVARC ने कोई कमेंट नहीं किया इस पे। लेट अस सी किसको फिलहाल के लिए IFIN की जो डील है वो जाती है। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.